پیر اجمل رضا قاری صاحب کی ایک ویڈیو لے کے آئے رمضان کے اوپر. ٹھیک ہے, تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے اوپر یہ کیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. نوجوانوں آرام پسندی تھوڑی کم کرو. ہر وقت لیٹنا, ہر وقت آرام تلاش کرنا, یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. میں نے ابھی دوستوں سے کہا ہے, پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, رات ہو گئی ہے تقریباً 11 گھنٹے کی. 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد ہی عموماً سب جگہوں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے, تو 11 گھنٹے کی رات بنتی. بہت زیادہ بھی ڈاکٹر کہتا ہے کوئی سوئے تو 8 گھنٹے سو لے, نیند پوری ہے. اگر عشاء کے بعد موبائل کرو جلدی بند, تو ذرا سحری میں اٹھو, بندہ ہو جوان اور اٹھ کے پڑھے تہجد, تو مزہ نہیں آ جاتا. اور جو سحری کے وقت دعا کا مزہ ہے, جو دعا کی لذت ہے, نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح سیدہ پاک کو آواز دے کے کہا یہ ہماری تعلیم کے لیے, فرمایا اٹھو, یہ رب کریم سے سوال کرنے کا وقت ہے. پچھلی رحمت پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم سوتے ہیں, جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم. ایک گزارش تو یہ ہے کہ کوشش کریں ان راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھی جائے, اور یہ کوشش کر کے دیکھیں مزہ آئے گا. اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو دکھ بتانے کی بچائے نا, جب تہجد کی اللہ کو دکھ بتاؤ تو سارا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض صبح صبح 3 بجے بوجھ بھی 4 ہلکا بجے ہوگا, دل کا راز بھی رکھا جائے گا اور کرم بھی ہو جائے گا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا تھا جوان اس کی کو ذرا کم کر دیں بھائی. آپ دیکھیے لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے, باباؤں کے پاس جاتے. تعویذ دھاگا, کالا جادو, نیلا جادو, جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی, اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی. عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی اللہ ہے, سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا. حضور علیہ السلام کے فیوزات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے, مضبوط فکریں, مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے. ہم جیسے جیسے دیکھیں نا تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں, صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے, اصل موضوع ان کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا, صبر کا, شکر کا, قناعت کا, رجوع اللہ کا سبق دیتے ہیں. اصل موضوع ان کا ہے. لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے, اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے, زاغوں کے تصرف میں, عقابوں کے نشے من. نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے. مضبوط فکریں, کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لیں نا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے. اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے برا کرنا چاہے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ, چھوڑ دے بیٹا, آپ جب تک اللہ نہ چاہے. تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں, نہ اسلحہ پورا ہے, نہ گھوڑے پورے ہیں, نہ خوراک پوری ہے, لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ, تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, چیز کوئی نہیں پاس. تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے, وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا,
है तो 313, लेकिन जान हथेली पे रख के आए। जिसके खैमे के पास से गुजरे हैं शहादत की दुआ मांगते देखा है। उनकी आंखों से चमकती हुई रोशनी और उनके लफ्जों से फूटता हुआ वलवला और उनकी आवाजों से निकलता हुआ दबदबा किसी जगह भी उन्हें कमजोर नहीं होने देता। उनके अंदर कहीं भी कोई कमजोरी नहीं आने देता। गरीबी का नाम लेके सारा सारा दिन परेशान होना, गरीबी का नाम लेके अपने आप को मजलूम साबित करके लोगों को मदद पर उकसाना बंदा मोमिन का यह तरीका नहीं है। अपनी तवज्जो अल्लाह की जानिब करे, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तगासा पेश करे, लेकिन दुनियादारों को मायल करना, लोगों की जेबों की तरफ देखना, ये मोमिन की शान गर्दन को झुका देता है। खैरात का पत्थर जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में। भाई आप ताकतवर बने। देखे ना, एक नौजवान ने आके हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब हूं, कुछ दीजिए। तो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने हुजूर से बड़ा कुछ सुना, ये लफ्ज नहीं, लफ्ज ला, यानी मेरे पास नहीं है, ये हमने हुजूर से सुना ही नहीं। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, बस एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज भी देखिए, कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। और ये जरा देखिए शेरी ज़ौक़ देखिए, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। नहीं, क्या अंदाज है। अब ये कैसी जुबान है और कैसा ये मुहावरे का इस्तेमाल है जो शेरी ज़ौक़ रखते हैं वो समझे। कहते हैं नहीं सुनता ही नहीं, कौन, मांगने वाला तेरा। या रसूलल्लाह आपसे मांगने वाला नहीं सुनता, हुजूर अता करते। और एक जगह पे फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हुजूर तो देते, पर नौजवान ने जब आके अर्ज की ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीजिए, वो जवान हो, चढ़ती जवानी हो, और फिर वो सवाल करे। हमारे साथ एक दोस्त पढ़ा करता था, ये 3 महीने की छुट्टियां होती थी तो वो मिस्त्रियों के साथ मजदूर लग जाता। हमने उसे कहा, यार तू मतलब 9th 10th के अंदर मजदूरी करने जाना, तो कहता सी यार मैं कद मेरा एडा बड़ा, उन अब्बा जी को मांग दिया शर्म आउंदी। वाह, ये सोच नौजवानों में पैदा होनी जरूरी है। अब मैं अब्बा जी से मांगू, मुझे तो देना चाहिए। उसने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे, तेरे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा, एक प्याला है मेरे पास घर में और एक कंबल है। इतना गरीब बंदा है कोई महफिल में जिसके घर में एक ही प्याला हो, एक ही कंबल हो? कोई भी नहीं इतने बड़े मजमे में। लेकिन अगर कोई हमारी गरीबी का रोना पूछे तो मेरा ख्याल है हर तीसरा बंदा, दूसरा बंदा गरीब है, और बड़ा ही गरीब है। एक प्याला, एक कंबल। करीम ने फरमाया लेके आओ। वो लाए तो महबूब फरमाने लगे, कौन खरीदेगा? एक ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2 दिनार। महबूब ने बोली लगवा दी, 2 दिनार का बेच दिया। फरमाया जा 1 दिनार की रोटी ले जा। ये नौजवानों को फिक्र दी कि वो इन्वेस्टमेंट में तुमने जात से अपने घर से 2 दिनार, वो 10-15 हजार का ठेला भी किसी से नहीं कहना तू लगा के दे। जाओ 1 दिनार का खाना ले जाओ, 1 दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के लाओ। सहाबा फरमाते हैं वो कुल्हाड़ा लाया, पर नसीब देखो उस कुल्हाड़े में दस्ता नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जंगल में जाके लकड़ियां काट और बेच, खा भी और खिला भी, पी भी और पिला भी, 10 दिन मुझे नजर ना आना। ओ यारो ये क्या बात हुई?
मायूस रहना, कमजोर रहना, फलाने ने मेरे साथ ताउन नहीं किया तो मैं पीछे रह गया, फलाने ने हाथ नहीं पकड़ा। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में खुद जद्दोजहद कर, मैदान में उतर, हिम्मत कर। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान ने आके अर्ज की, हुजूर बस आज के बाद मैंने काम नहीं करना। फरमाया तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगा आज मैंने अजीब मंजर देखा है। मैंने देखा है कि एक शेर ने शिकार किया बकरे का, आधा खाया है, आधा मुंह में पकड़ के पहाड़ी पे चढ़ गया। वहां एक नाबीना लोमड़ी बैठी थी, बाकी का उसने उसे खिलाया है। अंधी तो अंधी हुजूर लोमड़ी। मैं ये समझ गया हूं कि जो रब उस नाबीना लोमड़ी के लिए बंदोबस्त करता है मेरे लिए भी करेगा, ओ, लिहाजा मैंने काम नहीं करना। हजरत हसन बसरी बड़ा मुस्कुराए, फरमाने लगे कहानी में किरदार तूने दो देखे, एक शेर एक लोमड़ी। फरमाने लगे क्या बात है तेरी, तूने लोमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों तू नहीं दूसरों बनाया? की मदद करना। तू शेर बनना, शिकार कर, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। ये क्या बात हुई? लोमड़ी बन। उम्मत के जवान फाइलें लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते और अपनी बगल में कागजात लिए एम्बेसियों के फेरे काटते और एजेंट्सों से सवाल करते कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है, क्या तरीका है? यहां रह के भी मेहनत हो सकती है, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। दोस्तों सुनो, मेरे करीम ने फरमाया जा लकड़ियां, एक पेशा बुरा है मेरे भाइयों, एक पेशा, वो है किसी के आगे हाथ फैलाना। बाकी दुनिया में कोई पेशा बुरा, जो ठेला लगाता है और माल्टे बेचता है और सेब बेचता है, बड़ा इज्जत वाला आदमी। ये शॉर्टकट छोड़ दो, दूसरों पे भरोसा करना छोड़ दो। वो शायर एक बैठा था ना, शायर मुझसे नाराज ना हो जाए, तो कई दफा वो शेर और शायरी में भी उनकी हालत बड़ी खस्ता हो जाती है। जिन दिनों लोग पतले कपड़े पहनते हैं, बाज शायरों ने उन दिनों में भी मोटी चादर ली हुई होती है। तो एक जगह बेचारा बैठा था कोने में, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं, तो हालत ऐसी खस्ता थी, एक बंदा 5 रुपए फेंक गया, तो था खुददार, बड़ी तकलीफ को उठा अपने पैसे। तो उसने कहा आपकी हालत बता रही है, आपको जरूरत है। उसने कहा जरूरत पड़ी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तेरे से क्यों मांगूंगा? शेर बड़ा कीमती कहा। उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, वाह, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। ओ, मैं तो वारस है मेरे अल्लाह रसूल, मैं को लवारस हूं कि तेरे से मांगता फिरूं? माशाअल्लाह माशा। बस हम समझे हमारी कीमत वसूल हो गई। अगर खुददारी पर नौजवान नारे लगाने लग गए तो फिर तो बात बन गई। लगता है मेहनत का इरादा बन गया है। इंशाअल्लाह ताला कशकोल टूटने का टाइम आ गया है, करम की बरखा बरसेगी, यही मिल्लत का जवान क़यादत करेगा। और याद रखना, हमेशा क़यादतें गरीबों के बच्चों ने की है, जिन्होंने आधी कीमत पे किताबें लेके पढ़ी हैं, बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की हैं। ये कमजोर ना पढ़ो। नबी पाक दाइया इल्लल्लाह है, हुजूर ने जगाया है, 15 दिन नजर ना आना, मजदूरी कर। कुल्हाड़ी दी ना खरीद के, मजदूरी कर जाके, उसके बाद अब तेरा हाल क्या है? उसने कहा हुजूर पहले एक प्याला था ना, अब सारे घर के बर्तन बन गए। ओ, पहले एक बिस्तर था, अब सारे घर के बिस्तर। और नौजवानों, हमने सहारा तो मेहनत करो, कल कुल्हाड़ी देती जा। माँ से कहना है अब तूने आंसू नहीं बहाने, तेरा पुत्र बड़ा हो गया है। बहन से कहना है अब तू कभी परेशान नहीं होगी, तेरा भाई बड़ा हो गया है। बूढ़े बाप के पास बैठ के कहना अब्बा जी बस अब आंसू पूछ दो, आज के बाद परेशान नहीं होना, पुत्र जवान है। अपनी बीवी से, बच्चों से कहना कि किसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम्हें देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम मैदान में हैं, बस अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नबी पाक ने मेहनत को सपोर्ट किया है, मुशक्कत को सपोर्ट किया।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो तू अपने दो हाथों से मेहनत करके खाता है। फरमाया अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मेहनत करके कमाया करते। संगियों काम करना। और दूसरी बात भरोसा अल्लाह रसूल पे।